For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Today we have Atharv Deshpande sir with us, the author of Begin Again. Thank you so much sir for coming on our show. We are highly grateful कि आप हमारे शो पर आए. So thank you so much, Gaurav, for calling me on your podcast. To begin, I just want to say that I have watched all your podcast, and I know that you have completed 25 of your podcast, and I really like your work. So I'm looking forward to talk to you on my book. Thank you so much sir. That means a lot to us. Okay, so sir, before we get into the podcast and know much more about your book, I will just like you to please, just give a quick introduction of yourself to our audience, ताकि उन्हें मतलब पता चल जाए that who are you. Okay, so यार मेरे बारे में पूछूंगी, खुद के बारे में मैं भी उतना जानता नहीं हूँ. बस बेसिक चीजें बताऊंगा मेरे बारे में कि मैं एक ऑथर हूँ. So I'm 24 years old and I've just written a book called Begin Again, which is a poetry novel. And I am also an actor. I am a team leader. I work in an IT firm as a team leader. And my book is it's a poetry book, and it's a small book of love, and it's doing well due to all the love I have got from my readers. So that's about it. That's about me. Okay. That seems कि काफी interesting conversation होने वाली है, because apart from being an author, you are doing a couple of things more. So now coming straight to your book, sir, can you please share about your book? I hope कि almost सभी ने इस book को पढ़ा हो, but still जिन्होंने नहीं पढ़ा, what they can expect from that book? So Gaurav, my little book of love, Begin Again. It is a poetry novel with a story in it. So it's a coming of age story of Mihika, Shaurya and Anirudh, and how they grow in love. And I have tried to change the structure of storytelling through my book. I have been getting overwhelming response till now for the book, and I hope that the love continues. I feel that it's a unique book as it is both in Hindi and English. So it's the first time I have written the book in English, as I feel that English is the new language for the young, and I personally feel that storytelling should not have a language. So that was my thought about the book. Definitely, because जो आपने सर ये word use किया English, it can be a major reason for your book being a bestseller. And I just came to know that your book was a Amazon poetry bestseller. So can you share around how many copies you have sold till now? So I've nearly sold 3,500 copies till now. Okay, that's great. It's doing well on Amazon, and it was on the Amazon bestseller. So I really feel blessed for that. Definitely, sir. First of all, congratulations for selling so many copies, sir. It's completely a milestone. Thank you so much, Gaurav. Okay. Sir, as you just shared कि आपकी book bestseller थी, and we also know that it's a kind of a race, being in the bestseller and getting that orange tag. Can you share what goes behind a modern day bestseller? आपके क्या mindset होते हैं, क्या thoughts होते हैं आपको, जब bestseller बनने के बाद क्या होता है, ये सारी चीजें आप अगर हमारे listeners को share कर पाएं. जी जरूर. So I feel that the most important factor for a modern day bestseller, as you call it, is of course the right content. Something that has not been told before. The story most of the stories are the same, but the way you narrate your story is within you. But another aspect that I discovered while promotion of the book on social media is social media. So social media is a very important factor that helped me reach a lot of people. So my Instagram family is nearly consists of 8,000 people, and I have been fortunate enough that people are buying my book, reading it and sharing it. So I have been writing on Instagram. यार पिछले 5 साल से मैं Instagram पे लिख रहा हूँ, और मैं बस ऐसे ही लिखता था कि कुछ उसका मोटिव नहीं था, बस लिखता था. मैं पोइट्री डालते रहता था और कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद बुक पब्लिश करूँगा. लेकिन बहुत सारे रीडर्स ने मुझे कहा कि आपको पब्लिश करनी चाहिए.
उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला और फिर चीजें होती गई, बस उतना ही। So like can you share with us like आपने जो शेयर किया कि आपकी बुक इंग्लिश में एंड इट्स अ पोएट्री बुक, so like what was the vision regarding the book, या फिर कह सकते हैं कि like what motivates you to write on this topic? Okay, so इस बुक के बारे में बताऊंगा यार कि I still remember like I was quarantined at my farm house while COVID first hit, Okay. and I went through all the poetries I had written in the last 5 years. So मैं usually पेन पेपर नहीं यूज करता हूँ ज़्यादा, मैं अपना जो एप्पल का नोट्स होता है तो उसमें लिखता हूँ। So I went through all the poetries from the last 5 years, and मैं जब वो poetries पढ़ रहा था ना यार, तो मुझको वो moments दिख रहे थे कि ये poetry लिखते हुए मैं लाइफ में क्या एक्सपीरियंस कर रहा था। और जब मुझको वो रियलाइज हुआ कि यार ये चीज मतलब जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जब द रोड नॉट टेकन लिखी थी, या शेक्सपियर ने जब शेक्सपियर सोनेट लिखा था, या अमृता प्रीतम ने मैं तेनू फिर मिलांगी लिखा था, तो उनके लाइफ में क्या चल रहा होगा जब उन्होंने इतनी प्यारी शायरियां लिखी थी। सो आई वाज जस्ट ऑब्सेस्ड विद दोस पीपल एंड दोस पोएट्स, एंड आई हैड अ कन्वर्सेशन विद देम व्हाइल आई वाज क्वारंटाइन्ड, क्योंकि मैं पूरा अकेला था और मैं चाहता था कि मेरी बुक के थ्रू मैं एक कैरेक्टर स्टडी बताऊं कि अनिरुद्ध की जिंदगी की कैरेक्टर स्टडी थ्रू हिज पोएट्रीज। तो मतलब अपनी स्टोरी चलती है और बीच बीच में अनिरुद्ध के माइंड दिखाने के लिए हम पोएट्रीज दिखाते हैं, जैसे एक म्यूजिकल होता है, ब्रॉडवे म्यूजिकल, या फिर जैसे एक मूवी चलती है, एक स्टोरी चलती है और फिर गाने आते हैं बीच बीच में उसका स्टेट ऑफ माइंड दिखाने के लिए। तो वैसी है मेरी बुक की स्टोरी चलती है और बीच बीच में पोएट्रीज आती है। And like as you know, what I can feel is like, is it a true story, sir? Like the story of Mehika, Shaurya, या जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कोई भी इसमें से स्टोरी या कोई भी इसमें से जो कैरेक्टर्स हैं ये क्या ट्रू हैं? Because the way you've you know just described about those characters and feelings, it seems कि somewhere it has to be, you know, some true story or inspired by some true events, something like that. Yeah, it's a really good question यार गौरव। यार बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है उसके बारे में कि स्टोरी रियल थी नहीं थी। मैंने अभी तक वो फसाड तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ जरूर करूंगा यार मैं गौरव, क्योंकि तुमसे बात करके अच्छा लगा मुझको। बिल्कुल। So मुझे ऐसा लगता है यार, I feel that I'm just a collection of books I have read, the films I have watched and the people I have loved. So everything I write is inspired by something true. So मेरे बुक्स का कैरेक्टर शौर्य और मीका, स्पेशली मीका, द कैरेक्टर ऑफ मीका फ्रॉम माय बुक इज गेटिंग अ लॉट ऑफ लव, एंड इट शुड एज द पर्सन इट इज बेस्ड ऑन इज अ ब्यूटीफुल सोल, इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू पर्सन फ्रॉम माय लाइफ, एंड शी हैज हेल्प्ड मी विद माय मेटामॉर्फोसिस। आई owe a lot to her, and I won't name her obviously because she is in a sunny space of life right now, but there is always a truckload of gratitude toward her, and I really respect her for making me the person I am. So यार कुछ हिस्से सच है मेरी स्टोरी के, पर यार सब कुछ तो नहीं बोल पाऊँ, सब कुछ इधर उधर से उठाया हुआ है यार मेरी जिंदगी से। Definitely, totally understand, sir. And in fact, what I personally feel, sir, कि जितने भी जैसे true stories होती हैं, अगर आप as it is लिखेंगे तो that's gonna be a play, right? So you know कुछ तो उसमें add on करना ही पड़ेगा, otherwise that will be, you know, अगर documentary type की, yeah. Okay, so मतलब फिर मजा नहीं आता यार, फिर जो जूस होता है ना उसका वो मिस हो जाता है। Definitely, because हाँ तो चलता है वही because at the end of this year आप you know एक प्रोडक्ट भी तैयार कर रहे हैं मार्केट के लिए, so it has to be ताकि लोग उसे एक्सेप्ट कर सकें, right? It's not something कि आप you know कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी पब्लिश कर रहे हैं, because after all आप मार्केट में जब जा रहे हैं तो you have to make certain products जिसको लोग पसंद करें, तो you have to just you know mold something related to that. Okay, so yeah, you have to like keep it entertaining and keep it readable, because definitely there is an audience like definitely they want because something interesting. They have certain expectations, right? Okay, if I'm reading some book, I have to you know just go in some another world just to skip my own world. So according to that, I guess the author's right.
Okay, so my next question to you, sir, like just I read around like half of a book. So you talked about difference between romance and romanticism in a book. So can you just enlighten about the same, like what exactly you wanted to say through that? Okay. So all our life, through great literature, we have been taught romanticism. I feel like right from Devdas or Romeo Juliet to Kabir Singh now. It's just the idea of love that we are after. मतलब बस एक आइडिया है यार कि ये बंदी है, इसे मैं प्यार करता हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं दारू पीऊंगा, मैं ये करूंगा, पर वो गलत है ना यार. बिल्कुल. Because after a while I feel that romanticism is very toxic concept. I felt about drawing parallel between idea of love, मतलब एक आइडिया आप जो दिमाग में होती है, और love itself. So मुझे ऐसा लगता है कि लव मतलब यार दो लोग बस चल रहे हैं रास्तों पे, बारिश हो रही है और दो लोग बातें कर रहे हैं, वो प्यार मुझे ज्यादा लगता है, rather than like breaking each other और toxicity नहीं पसंद है मुझे. So idea of love वैसी होती है ना कि यार you give each other pain, और बहुत ज्यादा expectation होता है और बहुत stupid होता है सब. So I believe in love where people help each other building each other's dream rather than breaking them. So एक दूसरे को जब आप बेहतर इंसान बनाते हो, मुझे लगता है वो एक काबिल लव है, काबिल प्यार है. एंड व्हाट आई पर्सनली फील सर कि ये जैसा भी आजकल के माइंडसेट में है या जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, इट्स मोर इवॉल्व्ड फ्रॉम बॉलीवुड. लाइक इट हैज़ प्लेड अ वेरी मेजर इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट. और देखा जाए तो जैसा कि कोई भी मूवी होती है या कोई वेब सीरीज जैसे आजकल हम देखते हैं, तो उसको एंटरटेनिंग बनाने के चक्कर में उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा दी जाती हैं, पोर्ट्रे कर दी जाती हैं कि वो चीज़ लोगों के माइंड में रह जाती है, राइट. और इनफैक्ट वहीं पे अगर किसी बुक, हाँ, इसी वहीं पे किसी अगर बुक में कोई चीज़ लिखी हुई है जो कि जो होना चाहिए, तो लोग बुक पढ़ते ही नहीं, इस वजह से वो जान नहीं पाते हैं. सो व्हाट आई फील दैट्स द मेन रीजन. और सर यहीं पे एक छोटा सा मेरा और क्वेश्चन था. टोटली सेकंड टू दैट. हाँ, सो मेरा इसी से सर एक छोटा सा रिलेटेड क्वेश्चन था. जैसे व्हाट आई पर्सनली फील सर, या फिर जैसे अभी हमने बहुत सारे और ऑथर्स के साथ भी इस बात पे काफ़ी डिस्कस करते रहते हैं कि जो आजकल नंबर ऑफ रीडर्स हैं वो काफ़ी लेस होते जा रहे हैं. लाइक आजकल अगर बुक पढ़ने की बात आए तो द पेशेंस जितना चाहिए होता है एक बुक पढ़ने में, वो बहुत ज़्यादा चाहिए. और जैसा कि आजकल की जनरेशन या जो भी है 15 सेकंड के वीडियोस में भी स्वाइप अप करते रहते हैं, उसमें भी चूज करते रहते हैं. तो व्हाट आई पर्सनली फेल्ट कि जब इनफैक्ट आजकल देखा जैसे तो बुक जो है अवेलेबल भी बहुत ईजिली हो गई, जैसे किंडल हो गया, पेपर बैग्स आप कहीं भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, PDF ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको बुक फ्री में प्रोवाइड कराती हैं, बट स्टिल लोग पढ़ नहीं रहे. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी मेजर्स टेक, मतलब हम क्या कर सकते हैं जिससे वापस यूथ इंक्लाइंड हो थोड़ा बहुत रीडिंग की तरफ? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि नई स्टोरीज बन बहुत कम रही है, मतलब लिखने वाले ही बहुत कम लोग हैं. मतलब मैंने खुद मैं बहुत लिटरेचर पढ़ता हूँ, स्पेशली इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर. तो हिंदी लिटरेचर में बहुत अच्छी चीज़ें बन रही है आज भी, लेकिन हिंदी की तरफ हम इंक्लिनेशन कम है, क्योंकि जो मैक्सिमम रीडर्स है इंडिया में तो वो एक इंग्लिश बैकग्राउंड की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो हिंदी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी जा रही है इस वक्त, पर मुझे लगता है यार इंग्लिश में कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, और वही वो कंटेंट है. क्योंकि मेरी खुद की मैं बात करूंगा, मेरी खुद की एक लव स्टोरी है, मैंने लव स्टोरी ही लिखी है, लेकिन मैंने एटलीस्ट एक अलग डायमेंशन में या अलग पर्सपेक्टिव में मेरी लव स्टोरी लिखी है. तो मुझे ऐसा लगता है यार वो सेम चीजें जब बनने लगती है ना, जैसे चेतन भगत ने बनाई थी 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ और 5 पॉइंट समवन, तो वही वो चीज अगर सब राइटर्स ने चेतन भगत ही बनाई तो क्या मतलब है? मतलब चेतन भगत ने एक बनाई वो ठीक है ना, तो अगर सभी राइटर्स वही वो बनाए तो फिर पढ़ने वाले भी क्यों पढ़ेंगे यार? I agree that there are 2-3 writers that are doing really well and they are bringing new concepts in hand, but यार वो 2-3 ही राइटर्स है और वो लोग होते हैं बेस्ट सेलर्स. मतलब उन लोगों को पढ़ा जाता है, जो नॉर्मल रीडर्स है वो लोग शिवा ट्रायलॉजी पढ़ते हैं, वो लोग देवदत्त पटनायक पढ़ते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है यार as a writer I feel that it is my responsibility or it is our community's responsibility to give something new every time and to outbeat ourselves. So readers को हमने गलत नहीं बोलना चाहिए यार, क्योंकि वो लोग
पढ़ते हैं, पर उनको अगर अच्छा नहीं दे रहे हो आप तो क्यों पढ़ेंगे? जैसे बॉलीवुड में भी हो रहा है यार कि बॉलीवुड में मूवीज नहीं आ रही है तो लोग नहीं देख रहे, लोग अभी ओटीटी देखते हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, डेफिनेटली डेफिनेटली सर. तो वही सीन है इधर पे मुझे लगता है. Okay, okay, okay. So my next question to you is like, do you have any writing schedule? Like, आप के दिन में कोई ऐसा फिक्स टाइम है, जैसे कि आपने बताया ना आप पिछले 5 साल से इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, फिर अभी आपकी बुक भी रिलीज हो गई, तो आपका ऐसा कोई परफेक्ट शेड्यूल है कि नहीं मैं दिन में इतने घंटे अपने राइटिंग को डिवोट करूंगा, या इट्स जस्ट रैंडम कि फोन उठाया कुछ लिख लिया फिर बाद में उस चीज को जाके डिस्क्रिप्टिव वे में लिख रहे हैं, ऐसा कुछ? जी जी. So यार इस पे ये थॉट पे मैंने एक पोएट्री लिखी थी बहुत पहले कि मैं सुनाऊं? डेफिनेटली सर. एक पोएट्री लिखी थी कि I feel that I have a gun in me, loaded with thoughts of ambiguity. In morning it fires flowers, and in night though blood showers. So mostly I write at night, and it is a time when I feel that I am in peace with myself and my thoughts. I have no other option but to put those thoughts on paper, and it's a way of healing or it's a way of meditating for me, because I have to write, because यार वो सर में वो chaotic जब चलता है ना यार, तो बेहतर होता है कि यार आप पन्ने में भर दो और वो chaos निकल जाए आपके दिमाग में से. डेफिनेटली सर. इनफैक्ट और सर मैं जो भी आपके बारे में भी जानना चाहूंगा यार, मतलब आप अगर लिखते हो तो आप कब लिखते हो और आपका क्या शेड्यूल होता है? सर बेसिकली जैसे अभी तो मैं नहीं लिखता हूँ फिलहाल, बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं इस वजह से, बट स्टिल व्हाट आई पर्सनली फील कि जो थॉट्स होते हैं या जो आर्ट आप जिसको कह सकते हैं, वो आपको खुद ढूंढती हैं. जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर मैं बैठने, जैसे सबका अलग अलग शेड्यूल होता है, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ इस बात से. जैसे अगर मैं बैठ के बोलूँ कि नहीं मुझे इतनी देर लिखना है, तो मुझे उस टाइम कुछ थॉट्स नहीं आएंगे. बट लेट्स से अगर मैं कहीं ड्राइव कर रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, तो ऐसे सर्टेन चीज़ों को देख के माइंड में तुरंत थॉट आ जाते हैं, तो मैं उसको फिर तुरंत फ़ोन निकाल के वहाँ पे नोट कर लेता हूँ. फिर बाद में जब भी मतलब रहता है कि नहीं इस चीज़ को अपलोड करना है या इस चीज़ को कुछ चेंज करना है, तो वहाँ से फिर मैं आइडियाज़ लेके फिर उस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ. भाई मैं टोटली एग्री करता हूँ आप जो कह रहे हैं उसके साथ, और ऐसे कितने सारे थॉट्स हैं कि जो मुझे किसी दिन आए थे और मैं उसे लिख नहीं पाया तो मैं उसे भूल गया. डेफिनेटली सर, इट्स कंप्लीटली अ रिग्रेट ऑफ माय लाइफ. रिग्रेट बहुत जबरदस्त. बिल्कुल. मतलब मैं समझ सकता हूँ आप क्या बोल रहे हो. मैं आपको अपना ट्रू इंसिडेंस बताता हूँ. जैसे लेट्स से कि कभी मैं कोई काम कर रहा हूँ, ओके, एंड अचानक से कोई थॉट आता है, तो मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं इतना मतलब शार्प हूँ, मेरा दिमाग इतना शार्प है कि मैं याद कर लूँगा. फिर जस्ट 5 मिनट बाद वो थॉट भूल जाता है, और उसको कितनी भी कोशिश कर लो, कितने ऐसे न जाने कितने थॉट्स ऐसे चेंज हो गए मेरे माइंड से, स्लिप हो गए, जो आज तक मुझे याद नहीं आता कि क्या सोचा था उस टाइम. भाई समझ सकता हूँ यार. मैं और एक चीज बताऊँ मेरे मतलब मेरी राइटिंग के बारे में. बिल्कुल. तो मैं क्या करता हूँ, मतलब ये टिप शायद बहुत सारे यंग राइटर्स को काम भी आएगी. सो व्हेन आई गो टू स्लीप आई थिंक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू माय बुक. मतलब अगर मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूँ, किसी राइटिंग पे काम कर रहा हूँ, तो मैं सोने के पहले बस वो सोचते रहता हूँ 15-20 मिनट, और जैसी नींद लग जाती है ना, तो हमारे माइंड का प्रोसेस वैसा होता है कि यू गेट इनटू दैट स्टोरी दैट यू आर थिंकिंग अबाउट. सो जैसे ही मैं उठता हूँ वैसे ही मैं फोन सबसे पहले साइड में रखता हूँ. मैं उठने के जैसे ही उठता हूँ बस मैं सुनता हूँ, मतलब मेरे माइंड को सुनता हूँ, और मैं सब कुछ याद कर लेता हूँ कि मैंने सपने में क्या देखा था. और मैं जैसे ही मैंने याद कर लिया मैं नोट्स में अपने लिख देता हूँ. सो इसको लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं. और जो अर्नेस्ट हेमिंगवे नाम का एक राइटर था, वो ये करता था, तो उसकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी थी, तो उसकी इसमें सीखा था मैंने. तो ये बहुत सारे राइटर्स को काम आएगा. डेफिनेटली. इनफैक्ट मैंने भी एक जगह पढ़ा था कि अगर आप कोई चीज़ सोचते सोचते सोते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं. सो दैट्स रियली गोना हेल्प पीपल. बस इसमें ट्रिक यही है कि आपको मोबाइल नहीं खोलना है सोने के बाद. आपको पहले उठने से ही आपके जो ड्रीम है उसको आपको सोचना है. उसके बाद में जब कलेक्ट हो गए आपके थॉट्स, तब आप लिखोगे. हाँ, डेफिनेटली. इनफैक्ट सर, जो आपने भी बात कही कि मोबाइल ना खोलने वाली, सो के उठ के, ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी करता है. जैसे अगर आप कभी भी किसी की शेड्यूल देखें, ऐसा कुछ देखें, तो उसमें पक्का रिकमेंड किया ज़रूर जाता है कि आप सो के उठ के एटलीस्ट फॉर एन आवर आप अपने फ़ोन को ना टच करें. बिकॉज आजकल ऐसा व्हाट आई फील ना सर, कि जैसे इतना हम फ़ोन को टच कर रहे हैं, इतना हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, कि जो पावर ऑफ थिंकिंग है ना, वो कहीं ना कहीं खो गई है.
जैसे हर चीज तुरंत मिल जाती है, माइंड को कुछ ऐसे सोचने जी। का, नई चीजें, क्रिएटिविटी आने का वो चांस ही हट रहा है अब धीरे धीरे। मैं एग्री करता हूँ यार गौरव, और उसमें ये भी बात है कि यार जब मैं जब छोटा था ना, तो हम लोग इमेजिन जब करते थे तो हमारे पास गूगल नहीं था। डेफिनेटली तो हम कैसे बस वो इमेजिनेशन में चले जाते थे, चलते रहते थे। आज कैसा कि जैसे ही हम कुछ सोचते हैं गूगल कर लेते हैं तो पता चल जाता है। मुझे तो लगता है कि यार जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको गूगल नहीं देना चाहिए, उनको बस बिल्कुल 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 सर, बहुत हेल्प होता है डेफिनेटली। बिकॉज अगर उन्हें जैसे कहते हैं ना कि जो आदत बचपन में लग जाए वो परमानेंट रह जाती है, तो उनका वो माइंड उस हिसाब से वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, है ना, बिकॉज वो हाँ। एंड इनफैक्ट वन मोर सर, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले वो अपने एक पोएम सुनाई रिलेटेड टू दैट, जी जी, वो डेफिनेटली सर आई कैन से दैट यू आर ब्लेस्ड विद द स्किल ऑफ राइटिंग। जो आपकी पोएम की रिदम थी या जो आपने वर्ड्स उसमें चूज किए थे, डेफिनेटली अमेजिंग सर। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। So sir, let's move towards our podcast, and my next question to you is like what are your favorite movies and books like which you recommend? ओके यार, बुक्स और मूवीज तो यार बहुत सारी, मतलब अनगिनत है यार। क्या बताऊं, मैं खुद एक्टर हूँ, मैंने प्लेस डायरेक्ट किए हैं, तो डेफिनेटली देखता हूँ, मैं बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। But so personally, I watch every kind of film. So I don't label a film by a masala film or an art film. I like all kind of films and books. And मतलब मैं जज कैसे करता हूँ बुक को कि वो मुझको कैसे फील कराती है। मतलब यार जैसे ये मूवी हो गई शाहरुख खान की, मैं हूँ ना, तो वो मूवी इतनी कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे वो देख के खुशी होती है, तो मुझे वो अच्छी लगती है। तो मैं कुछ रिकमेंडेशन दूंगा यार तुझको, पूछ रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक फिल्म है सोशल नेटवर्क, डेविड फिंचर की, जो फेसबुक के स्टोरी पे बनी है, तो वो फिल्म है जो देखनी चाहिए सबको, स्वदेश, आशुतोष गोवारी करके, वो बहुत पसंद है मुझको। फिर एक मूवी है मास्टर, पॉल थॉमस एंडरसन की, वो एक बहुत अच्छी मूवी है। गॉडफेलास मूवी है मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की, और एक तमाशा मूवी है इम्तियाज अली की, तूने देखी होगी तमाशा? हाँ बिल्कुल। तो वो भी मुझे काफी अच्छी लगती है। और बुक्स की बात की जाए तो काफका ऑन द शोर है, हारुमी मुराकामी की, अमेरिकन साइको है, ब्रेट एस्टन एलिस की, आउटसाइडर है, द आउटसाइडर, एल्बर्ट कैमस की, और एक ऑन द रोड बुक है जैक केरोक की। तो ये बुक्स मुझे काफी पसंद है। तो आउटसाइडर पढ़ेगा या आउटसाइडर तो उसको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि एल्बर्ट कैमस का कैसा दिमाग बहुत उलझा हुआ है, तो मतलब उसको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है। वो बस लिखता है और आपको आप खुद पता लगाते हो कि यार ये क्या कहना चाहता है। तो उसका बहुत टेढ़ा दिमाग है, तो आपके सर को ऐसा उल्टा करके रख देगा वो। तो पढ़ना चाहिए यार, तूने पढ़ना चाहिए। डेफिनेटली आई विल रीड इट। सो सर, जैसा कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, तब तक आपने बता ही दिया। लाइक अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर, आप एक एक्टर भी हैं। सो लाइक व्हाट डू यू चूज बिटवीन एक्टिंग एंड राइटिंग, एंड आप इन दोनों चीजों को मैनेज कैसे करते हैं? यार how can you compare your breath with your heart? Without either you will die. So दोनों दो चीजों को कैसे आप माँ और बाप को कैसे कंपेयर कर सकते हो यार? मतलब यार एक्टिंग ऐसी चीज है ना, डेफिनेटली एक आर्टिस्ट ही ऐसी बात कर सकता है। आई एम कंप्लीटली एग्री विद यू। मुझे ऐसा लगता है यार कि एक्टिंग आई डू टू फील, because I feel that I am a very unexpressive person in real life. मैं बहुत ही ज्यादा अनइमोशनल हूँ यार। मतलब मेरे रूम में अगर सांप भी आ गया ना, तो मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता, मैं बस देखते रहता हूँ उसको। मैं बहुत कम रिएक्टिव हूँ। तो इसलिए मैं एक्टिंग करता हूँ, क्योंकि मुझको खुद को एक्सप्लोर करने का, खुद के इमोशन एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है उससे। और राइटिंग जो है वो मैं हील करने को करता हूँ, क्योंकि बहुत टूटा हुआ हूँ मैं। There are a lot of scars that I have gone through. So I feel that writing helps you heal. मतलब आप जब किसी किताब पर आप एक कलम से कुछ लिख देते हो ना, तो आपका सारा दर्द वो किताब में डाल देते हो और आप बहुत हल्का महसूस करते हो। तो दोनों चीजों की अपनी वैल्यू और अपनी जगह है, और both the क्रियाज help me survive as a human.
Definitely, there was also a phase in my life, when I was, really आप कह सकते हैं कि एक down phase था life का, and then only I was, introduced to writing, और I personally feel कि writing, आपको बहुत help करती है, heal होने में, evolve करने में, definitely. So मैं totally agree करता हूँ यार. So my next question to you sir, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे plays किए हुए हैं, you are an actor, so how important is art to society? Like जब आप अपने वर्क को चूज करते हैं तो आप ये मतलब माइंड में आपको क्या रहता है कि सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, इसको ध्यान में रख के आप चूज करते हैं, या जो आपको पसंद लगे या जो आपको सही लगे आप वो चीज करते हैं? यार I would be lying if I say that I don't care about the society. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार, I feel that art has always influenced society and cultures, and my art or my work always talks about progressive society without stressing on it. मतलब मैं जोर नहीं देता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ, पर मेरे कैरेक्टर्स ही ऐसे होते हैं कि यार जो inclined होते हैं वो डायरेक्शन में. I feel that it should come out naturally with your characters without any stress. If you give people toxic characters, people become them. As movie stories are so culturally impactful in our society. और कैसा है ना यार, मैं मेरे भाई से बात कर रहा था, मतलब एक छोटा भाई है जो 12 साल का है, और वो टाइगर श्रॉफ की मूवीज को देखता है और वो बन गया वैसा. उसके जैसा बात करता है, वो उसके जैसे डायलॉग मारता है, वो सब उसके जैसा करता है. तो यार अगर उसकी लाइफ शेप हो रही है किसी मूवी के कैरेक्टर के जैसे, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे वो उसकी भलाई हो, है ना? बिल्कुल. और जो ये भी है, जो गीता है, बाइबल है, कुरान है, मुझे ऐसा लगता है वो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ लिटरेचर टू टेल ह्यूमंस हाउ टू बिहेव. Definitely sir, I'm completely agree with you. वही जी. Okay, so now coming to your personal life sir, जैसे कि हमने बहुत सारी बातें आपसे बुक से रिलेटेड कर ली, आपके वर्क से रिलेटेड कर ली, so can you share with us like how you celebrate your success, and apart from that like how you manage your failure? Like I'm definitely sure सबकी लाइफ में ups and downs आते हैं, so how do you just go with both of them? Success, Gaurav, I feel that success is about knowing that there is no destination. जब आप ये समझ जाओ ना यार कि कुछ है नहीं एक पैमाना जहाँ पर मुझे जाना है या पहुँचना है, तो आप सक्सेसफुल हो. क्योंकि there is this poem by नाजिर काज़मी and it goes like, जो तेरी मंजिल वो मेरा रास्ता, तेरा मेरा साथ ही क्या. तो जो आपकी मंजिल है वो मेरा बस रास्ता है और मैं बस चल रहा हूँ. So I feel that you should be unperturbed by success or failure. You should just move on in the juice of joy, life and process. I feel that process is the only truth. Journey is the only truth. And success and failure are just people you meet on your journey. और बस रास्ते में लोग होते हैं ना कि हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, बाय बाय. तो वैसे सक्सेस और फेलियर्स है कि आप मिलो उनसे, हाय करो, बाय करो और आगे बढ़ो. So that's what I feel about success and failure, I guess. So what you're saying that और एक बहुत खूबसूरत फ्रेज है यार, एक हाँ बिल्कुल खूबसूरत फ्रेज है कि कर्म करो और दरिया में फेंक दो. बस करो और फेंक दो, कुछ सोचो मत यार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस करते रहो. I believe in that. Okay, so what you are saying, कि being static in both the phases is, a sort of key to happiness. Right. Okay. Right. I totally second to that. I totally agree to that. Okay. So my next question to you sir, like what is the current mental state, like as an author or as a person, like what are the things which you want to focus upon, and what are the sort of issues you are facing as of now? State, तो यार I feel that as a community we are going through a mental breakdown due to COVID scene in our country. तो यार as a human, और या तेरा भी वही स्टेट होगा, मेरा भी वही स्टेट होगा, हम सब लोग अभी नम हो चुके हैं. So we are not able to show the pain anymore. सब भरा हुआ है अंदर, और मुझे ऐसा लगता है एक वक्त आएगा जब शायद
हम बैठ के दर्द बांटेंगे, दर्द जताएंगे एक दूसरे से कि हमने क्या खोया है कोविड के टाइम्स में, तो डेफिनेटली वो बहुत आगे है वक्त। अभी तक हम लोग पूरी तरीके से उससे रिकवर नहीं हुए। एंड आई ऑल्सो फील अबाउट द मेंटल स्टेट इज दैट द कलेक्टिव mentality of a society always changes. So as an artist, it is my responsibility to understand what is going through people's brain and pen it down and create beautiful art. तो बहुत ऐसे समय पे जहाँ से पूरे दुनिया का एक अलग समय शुरू होने वाला है। I feel that कोविड के बाद एक टोटली न्यू स्पेस शुरू होगा जहाँ पे नई कहानियाँ आएगी, नई स्टोरीज आएगी। और इस समय एज एन आर्टिस्ट हमें ज़रूरत है कि हम समझे कि सोसाइटी क्या देख रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। सो आई फील दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी एंड हाउ इट्स मूविंग फॉरवर्ड। And what is the thing you want to focus, as a person in your life, like as of now? As of now, like my goal is just to make sure that my little book of love, यार मेरे को इतना ये नहीं है कि मेरी बुक XYZ नंबर ऑफ सेल्स करे। बस अगर किसी के दिल में घर कर दिया ना मेरे बुक ने, तो वो काफी है मेरे लिए। That's a blessing for an artist, yeah. तो फिर मतलब वो नंबर्स का क्या है यार। Definitely, बिल्कुल। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझको मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि आई हैव स्टार्टेड रीडिंग आफ्टर रीडिंग योर बुक, आई हैव स्टार्टेड पोएट्री आफ्टर आई स्टार्टेड रीडिंग योर बुक। तो ऐसे समय पे लगता है ना, वो खुशी होती है। मतलब आई फील दैट definitely a reward for an author. What I feel, sir, like बताना यार, हाँ बताएं सर। तू बताना यार, तो तुझको कौन सी मूवीज पसंद है, तुझको कौन सी बुक्स पसंद है? आई वुड लाइक टू टेक रिकमेंडेशंस फ्रॉम यू सो दैट आई गो ऑन एंड वॉच दोस मूवीज। बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट द राइट पर्सन टू रिकमेंड एनीथिंग, बट स्टिल जो मुझे पसंद है मैं बता देता हूँ। अगर बुक्स में देखा जाए तो आई एम नॉट उतना ज़्यादा मैं रीडिंग में नहीं इन्वॉल्व, but still some of the books, like the books on self help, I guess I prefer the most. And after that अभी एक recently एक book release हुई है on the कर्म, अभी मैंने last week उसको खत्म की थी। सिग्मा नाम था उस book का। वो भी आप एक बुक पढ़ें सर। वो इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और वो काफ़ी अच्छी है। मतलब उसमें कर्मा से रिलेटेड चीज़ें शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू बताई गई हैं कि देयर इज अ बिगर पिक्चर जो हम भूल जाते हैं। बेसिकली द पॉइंट इज दैट। And when it comes to movies, sir, any sort of movie, जो थोड़ी माइंड को रिलैक्स कर दे, जिसको देखने के बाद थोड़ा एक लाइट सा फील हो, खुशी हो डेफिनेटली सर। सो आई प्रिफर दोस काइंड ऑफ मूवीज। और जो थोड़ा सा कभी जैसे जब मूड लो है या जब थोड़ा डिमोटिवेशन टाइप का है, तो कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल एक मोटिवेशन टाइप की मूवीज, तो आई जस्ट गो विद दैट। I will surely read the book that you suggested, Sigma. I have just written it down. So thank you so much for the recommendation. And what I was saying, sir, ना जैसे कि आपने बताया कि आपके बुक अगर किसी के माइंड में, तो it's a completely blessing, right? So what I personally feel, sir, कि जैसे नंबर्स तो जैसा आपने सही कहा कि आज 3000 हैं, कल 4000 होंगे, 5000 हो जाएंगे, ऐसे होते जाएंगे। ब्लू ऑरेंज टैग का भी रहा बेस्ट सेलर का, तो वो भी आज है कल नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। बट व्हाट आई पर्सनली फील है सर कि अगर कोई लेट्स से अगर आपके पास आपने 3500 आपने बुक सेल की हुई, बट अगर आपके पास वो जो 10 आपके ट्रू रीडर्स निकल के आएंगे ना, जो जिन्होंने आपकी स्टोरी से इम्पैक्ट लिया है, दैट्स एग्जैक्ट रीडर, या वो आपके लोग, मतलब एक आपका सर्टेन ऑडियंस बेस है, वो है कि नहीं? आपको क्या लगता है? हाँ यार, वो मतलब वो सच्ची आशिकी है वो, मतलब हाँ मेरे किताब की सच्ची आशिकी है वो। अगर कोई बंदा मेरे बुक पढ़े और उसका जूस समझे, उसका रस वही अपने आप को इवॉल्व करे, वही आई टोटली एग्री ऑन दैट। व्हाट जैसे बहुत सारे न्यू ऑथर्स आते हैं, आई एम ग्लैड दैट आप उन सारी चीज़ों से ऊपर हैं, बट जैसे कि बहुत सारे न्यू ऑथर्स आते हैं तो दे फॉल फॉर दैट कंपटीशन, दैट ऑरेंज टैग एंड कितनी सेल हुई कितनी नहीं। बट व्हाट आई रिकमेंड देम
टू इज लाइक कि ठीक है, जितनी सेल हुई उतनी सेल हुई। लेट्स से अगर आपकी बुक 10 लोगों ने खरीदी, एटलीस्ट 10 लोगों ने जाना, 10 लोग लेट्स से अगर वो अपने पैसा हुआ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी बुक में, तो डेफिनेटली 10 में से 5 तो आपके साथ रहने वाले हैं ना। सो जस्ट फोकस ऑन दैट एंड नंबर्स तो चलने ही वाले हैं, कभी ना कभी खत्म होने वाली तो है नहीं ये रेस जी। और आर्ट ऐसी चीज है ना गौरव, की आर्ट में कभी मैथमेटिक्स नहीं होता है। डेफिनेटली तो आप 1 2 3 1 + 4 4 + 5 ये नहीं कर सकते हो आर्ट में। आर्ट में आप बस महसूस कर सकते हो। बिल्कुल। और महसूस एक ऐसी चीज है यार जो पर्सन टू पर्सन सबके लिए अलग होती है। और जब कोई बंदा, मतलब चाहे वो एक बंदा हो जो आपकी चीज महसूस करे, जो आप बोल रहे हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बातें महसूस कर रहे हो, तो मेरे लिए काफी है यार। जस्ट मी टॉकिंग टू यू फील्स लाइक ग्रेट टू मी। डेफिनेटली। इनफैक्ट सर, अगर व्हेन इट कम्स टू आर्ट, तो आर्ट में ना कभी भी, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, या मैं भी बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपटीशन यू फील इन द इंडस्ट्री, बट कभी कभी मुझे खुद को लगता है कि आर्ट में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी कॉन्सेप्ट है, या सबका अपना एक एरा है सब हर चीज का। सो हर अपने की एक अपनी इंडिविजुअल चीज है, तो देयर कांट बी अ सॉर्ट ऑफ कंपटीशन इन दिस। जैसे आप किसी आर्ट के गैलरी में जाते हो, आप अलग अलग आर्ट देखते हो, तो आप ये नहीं बोलते हो यार कि ये आर्ट क्यों बनाया, ये आर्ट क्यों बनाया। आप उसमें से देखते हो कि आपको फील क्या हो रहा है वो आर्ट देख के। तो वो फील की बात है यार, मुझे लगता है, rather than कि कितना पैसा बनाया है, कितना क्या है। तो आपको अगर फील हो गया वो देख के, तो आपके लिए खत्म है यार। बिल्कुल। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज उस टाइम पे है जब आपकी बुक रिलीज हो रही थी, लाइक सर जैसा कि आपने बताया कि आप पिछले 5 सालों से लिख रहे हैं, आपकी एक इंस्टाग्राम पे भी अच्छी खासी ऑडियंस बेस थी, तो डू यू फील स्ट्रेस्ड व्हाइल रिलीजिंग ऑफ ए बुक? लाइक आपने कोई ऐसा माइलस्टोन सेट किया हुआ था कि ओके मुझे इतने लोग जानते हैं, तो अगेन वी आर फॉलोइंग फॉर दोज नंबर की मेरे बुक को इतना सेल करना चाहिए, या ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए? क्या आपके उस समय माइंडसेट था? यार कभी उस डायरेक्शन में तो मैं गया नहीं, स्ट्रेसफुल वाले या कंपटीशन वाले। I feel that more than stressed, I was liberated in a way that my work that I've worked for so long is not mine anymore. It's just for my readers. And वो होता है ना यार, एक बच्चा होता है आपका, फिर उसको आपने बाहर पढ़ाई के लिए भेज दिया, तो उसको आपको फ्री रखना पड़ता है, उसको आपको जो तेरे को उसको ट्रस्ट करना पड़ता है उस पर। तो मेरा भी वही था यार, मेरे बुक को मैंने बस दे दिया है अभी ऑडियंस को, और जो भी सही गलत जैसा भी हो अभी ऑडियंस डिसाइड करेगी। और आई लाइक दैट फीलिंग वेरी मच अबाउट लेटिंग पीपल फ्री एंड लेटिंग योर वर्क फ्री। इट्स अ सोर्स ऑफ पावर फॉर मी टू राइट द नेक्स्ट वन। अगर मुझे कोई और किताब लिखनी है तो बहुत ज़रूरी है कि मैं जो पहले मैंने लिखा हुआ है उससे मैं दूर जाऊँ, उसका मेरा रिश्ता खत्म हो, क्योंकि अगर वो रिश्ता बना रहे ना तो फिर मैं और कुछ कर नहीं पाऊंगा जिंदगी में। तो इसलिए आई फील वेरी लिबरेटेड, आई फील दैट आज़ाद है अभी वो काम मेरा किया हुआ। In fact, sir, I will just please just take it as a compliment from me. Like जो words आप use कर रहे हैं, या the way you are speaking, it's completely portraying that you are a finest artist. Thank you so much यार। Okay. और जैसे मैं तेरे बारे में बताना चाहूँगा यार, मैंने तेरे सारे पॉडकास्ट देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है द वे यू थिंक एंड जो तू कहना चाहता है, तेरा जो पर्सपेक्टिव है ना वो बहुत लिबरेटिंग है, वो बहुत हेल्पफुल है लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है तू ये स्पेस में बहुत अच्छा कर पाएगा कि जो सेल्फ डेवलपमेंट वाला, जो जैसे तू किताबें पढ़ता है तो वो वाला स्पेस में तू बहुत अच्छा काम कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो तूने ये डायरेक्शन जाना चाहिए। बिल्कुल। एंड आई से दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। Thank you so much sir, means a lot आपके साइड से आना। So my last question to you of this podcast is sir, like what are your advices for the new authors? Like अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी स्टोरी उनके लैपटॉप में होगी, उनके हाथ में होगी, उनकी स्टोरी अभी तक पब्लिश नहीं हुई होगी। So what are your advices for them? Okay, for all the young authors, my only advice is to keep writing, and not because you will achieve something from it, only because
you are in love with the process of writing, and there is nothing else you can do before the message from your brain down your arms into your fingers are gathered on that page. And I feel that जो लिखाई है ना, जो पोइट्री है, राइटिंग है, वो खुदा का बच्चा होता है. तो इट ब्लेसेस यू. अगर आप उसके बारे में सोचो नहीं ना यार कि मैं लिखूंगा, मैं कुछ बन जाऊंगा, ये चीज अगर आप साइड में रख दो ना और बस लिखते रहो, तो मुझे लगता है यार इट ब्लेसेस यू, द राइटिंग ब्लेसेस यू इन इट्स ओन वे. ओके. तो बस करते जाओ, बस कर्म करो और दरिया में फेंक दो. Definitely. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this conversation. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. आप जस्ट Amazon पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें अथर महेश देशपांडे, या फिर आप बिगिन अगेन भी सर्च कर देंगे तो वहाँ पे सर की बुक आ जाएगी. आप ज़रूर उसे खरीदें, पढ़ें और अपने जानने वालों के साथ, चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें. Thank you so much, sir, for coming on our show. It was truly an amazing experience to have you on our show, and thank you for enlightening us. Thank you so much, Gaurav bhai. The pleasure was mine, and I felt really blessed talking to you, and बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे. So वापस बात करेंगे यार, पक्का. Definitely. और कुछ और टॉपिक्स पे. बिल्कुल sir. We will be waiting to have you again on our show. जी, और ख्याल रखिए अपना, और सभी लोगों को कहूँगा कि यार स्टे सेफ, वेयर मास्क, सैनिटाइज, क्योंकि अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ है. Definitely, sir. Thank you so much, sir. Thank you.